Hello students, so till now we have seen about the process and the threads. So let us see the difference between process and the threads. What are the difference and what are the workings of both the process and the threads. So the first point is process is a heavyweight or resource intensive. जैसे last class में I have told you that process is a heavyweight system since it is having the multiple number of threads and also containing the codes and resources of all the programs, and in thread is a lightweight process. It is a lightweight and taking lesser resources than a process. So lesser resources कैसे ले रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर एक प्रोसेस के पास 10 अगर रिसोर्स 10 है and it has a 10 number of threads inside it, so each thread can get one resource. सो क्या होता है कि प्रोसेस में अगर 10 है एंड तो थ्रेड में क्या क्या होगा, एक एक हो जाएगा. तो इस तरह से लेस नंबर ऑफ रिसोर्सेज इन देयर इन थ्रेड्स. सो प्रोसेस स्विचिंग नीड्स इंटरेक्शन विथ ऑपरेटिंग सिस्टम. हाँ, तो प्रोसेस, हर एक प्रोसेस क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम से डायरेक्टली अटैच्ड होता है. दिस इज़ द ओएस एंड दिस इज़ द प्रोसेस. तो ये डायरेक्टली अटैच्ड होता है एंड द थ्रेड्स आर डायरेक्टली अटैच्ड थ्रू द process. So process switching needs interaction with operating system and thread switching does not need interaction with operating system, क्योंकि thread switching needs interaction with process. And in multiple processing environments, each process executes the same code but it has its own memory and file resource. So we have already seen that each process have its own process ID, memory and input output informations. सो यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल प्रोसेसिंग इन्वायरमेंट में हर एक प्रोसेस का अपना अपना सारा डिटेल्स एंड रिसोर्सेज होता है. तो ये क्या करता है, ये सेम कोड पे रन करता है. एंड ऑल थ्रेड्स कैन शेयर सेम सेट ऑफ ओपन फाइल्स एंड चाइल्ड प्रोसेसेस, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्स शेयरिंग का एक जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ होता है थ्रेड्स में. इफ़ वन प्रोसेस इज ब्लॉक देन नो अदर प्रोसेस कैन एग्जीक्यूट अंटिल द फर्स्ट प्रोसेस इज अनब्लॉक्ड. तो यहाँ पे क्या होता है, ये डेडलॉक का प्रोसेस जो हो जाता है, जो डेडलॉक हम लोग पढ़ेंगे इन यूनिट 5 कि डेडलॉक क्या होता है. तो वहाँ पे क्या होता है कि किसी एक प्रोसेस को अगर कोई एक प्रोसेस मेरा ब्लॉक कर दिया सारा जो भी वर्किंग है, देन अनटिल एंड अनलेस दैट प्रोसेस इज अनब्लॉक्ड नो अदर प्रोसेस कैन रन इनसाइड द सिस्टम. बट इन द केस ऑफ थ्रेड, if one thread is been blocked, then no need to unblock that thread. The another thread can run in the same task, because we have seen that a process have multiple number of threads, and if the first thread is been blocked, then the second thread, third, fourth and all the threads can work um, without get affected by this thread 1, that is the first thread. So multiple processes without using threads use more resource. So multiple processes using more resource and multiple thread use very less resource. As in this the resource sharing is done. So in multiple process each process operates independently of the other. तो एक दूसरे से प्रोसेस डिपेंडेंट नहीं होता. तो जितना भी प्रोसेस होता है वो अलग अलग रन करता है. बट इन थ्रेड क्या व्हाट हैपेंस दैट वन थ्रेड कैन रीड, राइट और चेंज अदर थ्रेड्स डेटा. तो यहाँ पे क्योंकि थ्रेड शेयरिंग में डेटा शेयरिंग भी होता है, तो अगर लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि अगर एक डेटा n नंबर ऑफ थ्रेड्स को अगर शेयर किया गया, तो किसी भी एक थ्रेड से अगर किसी भी तरह का चेंज उस डेटा पे हो रहा है, तो इट कैन बी रिफ्लेक्टेड टू ऑल द थ्रेड्स. So that's the difference between process and threads. Let's move on to the advantages and types of threads. So the advantages of threads में क्या है, threads minimize the context switching time. तो जो भी context switching time होता है, जो context switching time last class हम लोग ने पढ़े थे कि अगर if we are having two process, two system, two thread, anything, तो अगर एक जगह से दूसरे जगह पे जाना है तो क्या होता है कि यहाँ पे कुछ हम डेटा एंड रिसोर्स स्टोर करते हैं और फिर हम ये दूसरे जगह पे आते हैं और फिर क्या करते हैं, दूसरे जगह से अगर थर्ड इफ़ वी वांट टू गो टू द थर्ड पोजीशन, देन अगेन वी स्टोर डेटा एंड रिसोर्सेज इन द सेकंड वन एंड वी मूव टू द फर्स्ट वन. सो दिस इज़ नोन एज कंटेक्स्ट स्विचिंग, कि एक जगह से दूसरे जगह पे जाना ताकि यहाँ पे कोई दूसरा भी एक प्रोसेस आ सके. सो इसमें क्या होता है, थ्रेड्स मिनिमाइजेज द कंटेक्स्ट स्विचिंग टाइम, क्योंकि थ्रेड एक प्रोसेस के अंदर होता है तो उसको ज़्यादा जंप नहीं करना पड़ता. मतलब उसको अगर जंप भी कर रहा है तो उसे जो रिसोर्स है, डेटा है, कोड है, वो रीलोड नहीं करना पड़ रहा, क्योंकि वो सारा थ्रेड्स का सेम होता है. द सेकेंड वन इज़ यूज़ ऑफ थ्रेड्स प्रोवाइड कंकरेंसी विद इन अ प्रोसेस. कंकरेंसी का मतलब होता है एक साथ में वर्क करना. तो अगर सारा थ्रेड एक ही जगह पे एक ही प्रोसेस के अंदर है, देन कंकरेंट प्रोसेस आर वेरी मच ईजी टू डू.
द थर्ड वन इज़ एफिशिएंट कम्युनिकेशन। एफिशिएंट कम्युनिकेशन इसलिए होता है क्योंकि एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स है, तो ये इसके अंदर ही कम्युनिकेट करना, तो इसका एक बाउंड्री लाइन होता है कि इसके बाहर इसको नहीं जाना है, इट हैज़ टू वर्क इनसाइड दिस प्रोसेस। And the fourth one is it is more economical to create and context switch threads. So economical in the sense that it does not have to create its own resource data and the codes, so it is more economical. And the last one is threads allow utilization of multiprocessor architecture to a greater scale and efficiency. So how it allows multiprocessor architecture, because it uses all the resources inside a process, and it is having this if we assume each thread as a process, then what happens that कि अलग अलग process को क्या होता है कि एक साथ ही हम use कर सकते हैं एक particular time में. So this results in multi processing. And let us see the types of threads. तो type of threads क्या क्या होता है? There are two types of threads. The first one is user threads, user level threads, and the second one is कर्नल लेवल थ्रेड. तो यूज़र लेवल थ्रेड में क्या होता है? यूज़र मैनेज थ्रेड्स, मतलब कि यूज़र का काम है, यूज़र मतलब हम लोग नहीं हो गया, CPU हो गया, दैट इज़, सो यूज़र मैनेजेस द थ्रेड. एंड इन कर्नल लेवल थ्रेड्स ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज थ्रेड्स एक्टिंग ऑन कर्नल. सो लेट अस सी ईच द बोथ ऑफ द थ्रेड्स in depth in the next slide. So user level thread, let us see this. So in this case the thread management kernel is not aware of the existence of threads. तो जो थ्रेड मैनेजमेंट कर्नल होता है उसको पता नहीं होता कि कौन सा थ्रेड है, कितना थ्रेड है हमारे एक प्रोसेस के अंदर. एंड द थ्रेड लाइब्रेरी कंटेन्स कोड फॉर क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रॉइंग थ्रेड्स. तो थ्रेड लाइब्रेरी में क्या होता है, जितना भी डिस्ट्रॉइंग के लिए, क्रिएटिंग के लिए जो भी थ्रेड्स का कोड होता है वो दैट इज़ बीन stored inside that for passing message and data between threads, for scheduling threads execution, and for saving and restoring thread context. So let us see in this example that this is the user space and this is the kernel space and these are the CPU, जो CPU होता है. So user space में क्या होता है कि process होता है, तो this is process 1, process P1 and P2. एंड इन कर्नल स्पेस क्या होता है कि देर आर जो थ्रेड होता है वो हम लोग कर्नल स्पेस में रखते हैं. तो जो भी यहाँ थ्रेड का लाइब्रेरी है, दिस इज़ द थ्रेड लाइब्रेरी एज यू कैन सी दिस. थ्रेड लाइब्रेरी में जितना भी तरह का डेटा एंड द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट थ्रेड होता है, दैट इज़ बीन स्टोर्ड इन दिस थ्रेड लाइब्रेरी. एंड दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आर द थ्रेड्स. तो यहाँ पे मल्टीपल थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट लिया हुआ है. तो ये थ्रेड क्या कर रहा है कि जो भी थ्रेड है यूज़र लेवल पे, मतलब यूज़र लेवल थ्रेड्स है, so it is being acted in the place of user space, and it is connected to the kernel space also. So जो भी kernel space से data it has to manage or it has to share the data, so it can do from this one. So similarly in this process too, तो ये होता है user level thread. Let's move on to the advantages and disadvantages of user level thread. So in this thread switching does not require kernel mode privilege, क्योंकि कर्नल मोड से ये एज यू कैन सी दैट ये अटैच नहीं है, तो थ्रेड स्विचिंग का कोई नेसेसरी नहीं है. एंड यूज़र लेवल थ्रेड्स कैन रन ऑन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, सो इट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट, कहीं पे भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये रन किया जा सकता है. द शेड्यूलिंग कैन बी एप्लीकेशन स्पेसिफिक इन द यूज़र लेवल थ्रेड, एंड यूज़र लेवल थ्रेड्स आर फास्ट टू क्रिएट एंड मैनेज. तो शेड्यूलिंग जो भी होता है यूज़र लेवल थ्रेड्स में, वो क्या होता है, इट एप्लीकेशन स्पेसिफिक होता है, मतलब जो भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे ये होता है. एंड द लास्ट वन इज़ यूज़र लेवल थ्रेड्स आर फास्ट टू क्रिएट एंड मैनेज, सो इट कैन बी क्रिएटेड वेरी इजली एंड द मैनेजिंग प्रोसेस इज ऑल्सो नॉट सो डिफिकल्ट. So there are two disadvantages also. So in a typical operating system, most system calls are blocking. तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी यूज़र लेवल थ्रेड है वो सिस्टम से कनेक्टेड है, तो इफ़ देयर आर मल्टीपल नंबर ऑफ यूज़र लेवल थ्रेड्स, तो वो क्या करता है, ब्लॉक कर देता है एक दूसरे को. सो दिस इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ यूज़र लेवल थ्रेड. एंड द सेकेंड वन इज़ मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग. तो मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन जितना भी होता है, मतलब कि मोर दैन, इफ़ यू आर हैविंग मोर दैन वन थ्रेड्स, तो वो क्या करता है, वो इट कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग, मतलब कि एक बार में एक से ज़्यादा प्रोसेस करने का वो एडवांटेज नहीं ले सकता. सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर. वी विल स्टार्ट अबाउट द कर्नल लेवल थ्रेड्स एंड मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स, एंड in the next lecture. Till then, stay tuned. Thank you.